Hello students, myself Khushbu Patel, working in Ashwin Bhai Patel Commerce College, Kadishava Vishwavidyalaya, Gandhinagar. Today we are going to start our new topic, that is single entry system, which is a part of financial accounting 1. Let's start with the content outline. First we have to discuss about the introduction of single entry system, then definition or meaning of single entry, then accounting entries under single entry system. After that, defects, it means limitation of single entry system. Then the most important question is difference between single entry and double entry system. And at the last, method for finding profit and loss in single entry system. There are two methods. First, comparison of capital method, and second, conversion of single entry into double entry system. Let's start with the introduction. In introduction, we discuss that what is single entry, who follows single entry system, which account we have to prepare single entry system. So this basic question we have to clear with this introduction. It's written over here. Double entry system of bookkeeping is a perfect system in which every transaction have two effect and every debit has a corresponding credit. In double entry system, that every transaction have two effect that we know in a debit and credit side, and we can say or we all know that double entry system is a perfect or a systematic method or a system, because जितने भी transaction की हम posting करते हैं, that all transaction posted with rules and regulation, उसकी rules के साथ ही हमें उसका debit and credit करते हैं. So it's a systematic process or systematic system. But who follows the double entry system? So it's a large scale businessmen follow the double entry system, because in double entry system we have to prepare all the accounts: real, nominal, personal account, trading, profit and loss, balance sheet, cash flow statement, and many more schedules we have to prepare in double entry system. So is it possible that small scale businessmen prepare this all elaborate account? So maybe your answer is no. So small scale businessmen follow the single entry system. So यहाँ से ये clear होता है, the large scale businessman follows the double entry system and small scale businessmen follow the single entry system, because उसका intention बहुत limited रहता है, उनके objective बहुत limited रहते हैं. Like their intention of keeping accounts is simply to get a rough idea about their profit and loss, about their cash and bank balance, or the amount due to others and due from the others. Small scale businessmen just like shopkeeper, provision store वाले जो लोग हैं, वो मिल्कमैन, वेजिटेबल मार्केट, उन लोगों के इंटेंशन बहुत लिमिटेड रहते हैं. लाइक उनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, कितनी अमाउंट उनको किसी को देनी है, किससे पास से कितना लेना है, दैट लिमिटेड इंटेंशन दे हैव. इसीलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सके, क्योंकि सारे अकाउंट्स मेंटेन करना दैट नॉट पॉसिबल फॉर देम. उसी के लिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स विच अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम. So it's written over here, they would not like to keep elaborate account as are kept under double entry system. They simply kept a cash book and ledger in which only accounts of supplier and customer are kept. सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एंड सप्लायर एंड कस्टमर के रिलेटेड अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नाउ सप्लायर एंड कस्टमर, इट मीन्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. नाउ इट्स रिलेटेड विथ पर्सनल अकाउंट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इज आवर पर्सन. सो सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ही हम प्रिपेयर करते हैं. रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर नॉट मेंटेन इन दिस मेथड. सो दिस ऑल अबाउट द सिंगल एंट्री सिस्टम, and this method is known as a single entry system. It is not a separate method of keeping account. It is only a incomplete double entry system. ये कोई separate method नहीं है, but इसको incomplete double entry system भी कहा जाता है. Now next portion we discuss about the definition. तो कोहलर ने definition दिया है. कोहलर defines single entry system as a system of bookkeeping which only record of cash and personal account are maintained.
ऐसे सिस्टम जिसमें सिर्फ कैश एंड पर्सनल अकाउंट ही हम मेंटेन करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वेरिंग विद द सर्कमटेंसेस। ये ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन वी डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में किस तरह की अकाउंटिंग एंट्रीज हम करेंगे? So as we know in double entry system that every transaction have two effect, but is it possible that single entry system also that kind of concept? So let's see over here. Under single entry system, all transaction are not given double effect. Maybe some transaction have two effect, while some transaction have one effect, or we can say some transaction have zero effect. How? Let's take an illustration. So here three illustration are there. First is sold goods worth ₹1000 to Sahil Patel on credit. 1000 का गुड्स हमने साहिल पटेल को क्रेडिट पे सेल किया है. देन व्हाट विल बी अ जर्नल एंट्री? सो इट्स रिटन ओवर हियर साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नाउ जस्ट वी डिस्कस सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ दो ही अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं. दैट फर्स्ट इज कैश अकाउंट एंड सेकंड पर्सनल अकाउंट. तो ये ट्रांजेक्शन में साहिल पर्सनल अकाउंट के साथ रिलेट करता है, बट सेल्स अकाउंट हम प्रिपेयर करते नहीं है. तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन की सिर्फ एक ही पोस्टिंग होगी, दैट साहिल अकाउंट में डेबिट करेंगे. सेल्स अकाउंट का पोस्टिंग हम कर सकते नहीं है. तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन की एक इफेक्ट हुई, ऐसा हम कह सकते हैं. सेकंड, पेड ₹500 कैश टू खुशी पटेल. खुशी को हमने 500 कैश दिया है. देन व्हाट विल बी अ जर्नल एंट्री? सो खुशी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पे क्लियर होता है कि खुशी इट्स रिलेटेड विद पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में. तो दोनों अकाउंट की हम यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, मतलब ये ट्रांजेक्शन की दोनों इफेक्ट होगी. एंड द लास्ट इलस्ट्रेशन, डेप्रिशिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% ऑन फर्नीचर ऑफ ₹10,000. 10,000 के फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिशिएशन हमें देना है. सो जर्नल एंट्री विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. यहाँ पे डेप्रिशिएशन अकाउंट भी हम प्रिपेयर नहीं करते एंड फर्नीचर अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर सकते नहीं है. सो यहाँ पे जीरो इफेक्ट. सो फ्रॉम ऑल दिस थ्री इलस्ट्रेशन वी कैन से in single entry system some transaction have one effect, some transaction have two effect, and maybe sometimes some transaction have zero effect also. Now next we discuss that defects of the single entry. Now defect, it means some limitation of single entry system. So first is trial balance cannot be prepared. हम trial balance prepare नहीं कर सकते. Arithmetical accuracy cannot be generated. हम एक्यूरेंसी फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे. इनकम्प्लीट एंड अनरियलिस्टिक रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग, नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है. डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑल द अकाउंट. सो हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट रहता है. इनप्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. असेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है और इम्प्रॉपर हो सकता है. चांस फॉर मिक्सिंग बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर्स. ओनर्स के बिजनेस के पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन मिक्स हो जाने के चांसेस रहते हैं. एक्सटर्नल एजेंसी कैन नॉट यूज़ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. कोई एक्सटर्नल एजेंसी को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है तो वो नहीं कर सकता जब वो इंफॉर्मेशन और डेटा सिंगल एंट्री से प्रिपेयर हुई है तब. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन or a theory that we can say, it's the difference between double entry system and single entry system. Till the time whatever we have discussed is divided into a two part, that is what is double entry system and what is single entry system. So start with the first point. Every transaction have two effect in double entry system. हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट रहती है एंड सिंगल एंट्री सिस्टम में ऑल ट्रांजेक्शन डू नॉट हैव टू इफेक्ट. हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट नहीं है. और हम ये भी लिख सकते हैं कि सम ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, सम ट्रांजेक्शन हैव वन इफेक्ट, और मे बी सम ट्रांजेक्शन हैव जीरो इफेक्ट. ये भी हम मेंशन कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ऑल अकाउंट्स आर ओपन इन द लेजर. डबल एंट्री सिस्टम में हम सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं लाइक रियल, नॉमिनल एंड personal account, whereas in single entry system only personal account are open in the
ledger. Third point is, as all accounts have been prepared in the ledger, so it is possible to prepare the trial balance, profit and loss account and balance sheet in a systematically. सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने की वजह से हम ट्रायल बैलेंस, P&L और सब कुछ हम सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर कर सकते हैं. Whereas in single entry system it is not possible to prepare the trial balance, P&L, balance sheet because हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते नहीं हैं. Next is, as arithmetical error can be detected, there are less scope for error and fraud. Arithmetical error अगर होती है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं और एरर और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज इन डबल एंट्री सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन वी हैव टू फॉलो विथ सिस्टमेटिकल विथ रूल्स एंड रेगुलेशन. इसकी वजह से एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं. वेयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड. अगर आप ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते तो आगे के अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसकी वजह से मतलब बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट रहता है. लार्ज एंड मीडियम बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेस फॉलोज और मेंटेन अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री. लार्ज एंड मीडियम बिजनेस वाले जो लोग हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वेयर एज वेरी स्मॉल बिजनेसमैन फॉलो द सिंगल एंट्री सिस्टम. नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बिग business sufficient information is available for decision making. Yes, this is most important. अगर आपका किसी की चीज़ का डिसीजन लेना है, फॉर द डिसीजन मेकिंग सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी फ्रॉम द डबल एंट्री सिस्टम. वेयर एज इन सिंगल एंट्री सिस्टम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिसीजन मेकिंग. किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए सिंगल एंट्री में से हम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल सकती नहीं है. By means of account, it is possible to keep control over various activity of the business as it is written accounting to certain rules and principle. डबल एंट्री सिस्टम certain rules and principle से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए जितने भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे एक्टिव है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं. Whereas in single entry system it is not possible to control over all the activities. Next है, for taxation purpose, accounts maintained under this system can be relied upon. It is approved by law. Taxation purpose से देखें तो जो डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन किए हैं दैट कैन बी रिलाइड, वो ट्रस्टफुल हो सकते हैं बिकॉज अप्रूव्ड बाय लॉ और सिस्टमेटिक वी कैन से. वेयर एज इन सिंगल एंट्री इट इज़ नॉट रिलाइड अपॉन. ये ट्रस्टफुल नहीं हो सकते, रिलाइड इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती बिकॉज इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय legal authorities. And the last is, if account are maintained by this system, then all necessary information are available for the purpose of granting a loan or purchase of the business. आपको लोन ग्रांट करनी या किसी का बिजनेस परचेज करना है तो जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, तो फ्रॉम द डबल एंट्री सिस्टम. जो बंदा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है वो सिस्टम में से ये सारी इंफॉर्मेशन हम मिल सकती है. Whereas in single entry system sufficient information is not available for granting a loan or a business purchase. किसी भी चीज़ के लिए हमें sufficient information सिंगल एंट्री सिस्टम में से मिल सकती नहीं है. So this is the most important question, that is what are the double entry system and what are the single entry system. Next portion we discuss about the method of finding profit or loss in single entry system. कौन सी तरह से हम सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं. तो देर आर द टू मेथड. फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मेथड एंड सेकंड, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम. This both method we have to discuss in a next lecture in detail with practical example. So thank you so much for listening me. Thank you all.